कनिष्क और भविष्या, आ गए तुम दोनों स्कूल से? Ma, do you know there is Janmashtami festival in our school? Why do we celebrate Janmashtami? Why did Krishna come on earth? Come, I will tell you story behind Krishna's birth. There was a big demon called Kamsa who was torturing everyone on the earth. Devotees were very scared, and then to protect them, Krishna took birth as son of Mata Devaki and Vasudev. Now let us see how devotees were praying to Krishna to appear on this earth. छाई घोर अमासी, आओ हरिया हरियाओ ना। सारी धरती है प्यासी, आओ हरियाओ हरियाओ ना। धरती को घर बनाने, दुख सारे दूर भगाने, अंधियारे सारे मिटाने, सूरज सा जगमगाने आएगा। झूमरे नाचो रे सब मिल गाओ रे, प्रीति की धुन लेकर हरि आएंगे। पलके बिछाओ रे मंगल सब गाओ रे, मानव का रूप लिए हरि आएंगे। उसकी ही आवाज है। हो उसका दरस दिखे हर एक आत्मा की प्यास है। आना हरियाणा तो तुझसे सारी आस है। गाए देखो गलियां गाए देखो, तीनों लोगों के वासी स्वागत को आए। Ma, we are very curious to know about childhood of Krishna. Come children, I will tell you some beautiful pastimes of Krishna. Let's go to Vrindavan and see a beautiful pastime of Lord Krishna. It is always fun to be with a butter thief. He has such unique ways of stealing butter, and never did he repeat a trick. And I proudly say this as the beloved friend of Krishna. But
Krishna, how are we going to steal the butter today? Just wait and watch. Krishna fogged and knocked on the door of Gopi. Other boys panicked and ran away. Oh Krishna, what are you doing here so early in the morning? Mother Yashoda has sent me. There is a very big sage coming to our house and we have run out of butter. She wants to know that if you could lend us some. She promises to return it as soon as possible since it is too late for her to make fresh butter. She felt that the butter made at your house could be the best alternative. She loves the quality of the butter you make and Mother Yashoda promises to return your butter. Oh Krishna, no need to return the butter. I am very happy to send the butter with you. Mother Yashoda asking itself is so rare. Please tell her that the butter I am giving to you is my service to the sages. I do not expect anything in return. Gopi gave pots of butter and sugar crystals to Krishna. Krishna signaled all his friends to come. Krishna, you are such a genius. There is no one who can be an expert like you in stealing the butter. Krishna, let's go to a safe place and relish this delicious butter. No, let's sit here only, right at the doorstep of this Gopi and relish this delicious butter. But Krishna, it is unsafe to sit here. If the Gopi opens the door, we would be finished. But it would be great fun to eat the stolen butter at the doorstep of the house from which we have stolen. I'm feeling so hungry. Can't wait anymore. Yes, Krishna is right. Let us sit here only and have the butter. Krishna and his friends started to eat the delicious butter, and the sound of this hustle bustle was going in the house of Gopi. So did the Gopi catch them? Let's see what happened. Oh, mischievous boy. Didn't you tell me that the butter you needed was for the sages who have visited your house? Why are you eating it here? Don't you have any shame? Your poor mother must be waiting for the butter. Oh Gopi, please mind your language. Don't you know that these friends of mine are no less than any sages? Look at them carefully. Sages? Wait, I will show you. Where is my stick? Wow, mother! Krishna enjoyed his childhood so much, and I have to go to school and do all the stupid homework. पर तुम्हें पता है कृष्णा भी स्कूल गए थे. अच्छा माँ, कृष्णा भी स्कूल गए थे. मुझे उनके स्कूल के बारे में कुछ बताओ ना माँ. हाँ माँ, प्लीज बताओ ना. क्या उनका स्कूल भी हमारी स्कूल की तरह था? पहले स्कूल की जगह गुरुकुल हुआ करते थे. कृष्ण ने अपनी शिक्षा उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में प्राप्त की. पता है तुम्हें, शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं. क्या तुम जानना चाहोगे कि कृष्ण ने अपने गुरु को क्या गुरु दक्षिणा दी? हाँ हाँ माँ, प्लीज बताओ ना. आई कांट वेट. तो चलिए चलते हैं संदीपनी मुनि के आश्रम में और देखते हैं कि कृष्ण अपने गुरु को क्या गुरु दक्षिणा दे रहे हैं. गुरु अपने शिष्य को जो विद्या का दान देता है, शिष्य उसको जन्मों तक नहीं चुका सकता है.
फिर भी लोक मर्यादा के अनुसार जाते हुए गुरु दक्षिणा देना शिष्य का धर्म है। इसीलिए हम जाने से पहले आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। जो गुरु गुरु दक्षिणा पाने के उद्देश्य से अपने शिष्य को शिक्षा देता है वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं। फिर भी गुरु दक्षिणा के भार से तुम्हें मुक्त करने के लिए मैं तुमसे एक ही वचन मांगता हूँ कि तुम मेरी दी गई हुई शिक्षा को सत्कार्य में लगाओगे। अवश्य गुरुदेव। गुरु और शिष्य में क्या बातें हो रही हैं? गुरु माता, आपने हमारी ही माता की तरह हमें हमेशा स्नेह दिया और दुलार किया। माता, इस उपकार को चुकाया नहीं जा सकता है। फिर भी अगर आपकी कोई इच्छा हो जिसे हम पूरी कर सके, हम उसे हमारा अहोभाग्य समझेंगे। मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर पाओगे कृष्ण बलराम। ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरी न कर सके। हम वचन देते हैं कि हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तो सुनो, हमारा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जिसका युवावस्था में निधन हो गया। क्या तुम उसे वापस लाके दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना? मैं जानती थी। जाओ, मैं तुम्हें इस वचन से मुक्त करती हूँ। उनकी मृत्यु कैसे हुई? हम स्नान करने प्रभास क्षेत्र गए थे। हमारा पुत्र भी वही स्नान कर रहा था। तभी एक लहर आई और हमारे पुत्र को अंदर की ओर खींच ले गई। उस समुद्र ने हमारे पुत्र को खा लिया और तभी से हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि बेहोश होकर वह व्यक्ति समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच जाए। मैं भी बरसों से अपने आप को यही झूठा दिलासा देती रही, पर अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं। अगर वह जीवित रहता तो अवश्य वापस लौट आता। जाओ, मैं तुम्हें इस वचन से मुक्त करती हूँ। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपका पुत्र जहाँ भी हो, हम उसे वापस लेकर ही लौटेंगे। हे जगतपति, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हे रत्नाकर, हमारे गुरु सांदीपनि मुनि का पुत्र पुनर्दत्त आपके प्रभास क्षेत्र में स्नान करने आया था। तभी आपकी लहरें उसे अंदर की ओर बहा ले गई। हमारी आज्ञा है कि आप उसे तत्काल हमें वापस कर दो। उनका पुत्र मेरे पास नहीं है। मेरे घेरायु में एक पांचजन्य नामक राक्षस रहता है, जो तट पर स्नान करने वालों को अंदर खींच लेता है और उन्हें खा जाता है। ये उसी का काम होगा। अच्छा, वो इस समय हमें कहाँ मिलेगा? वह इस समय एक छोटे से शंख में विश्राम कर रहा है। ठीक है दाऊ भैया, चलो चलते हैं। जागो दैत्यराज, देखो तुम्हारा काल तुमसे मिलने आया है। वाह, आज तो बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। पर इसके पेट में तो पुनर्दत्त नहीं है, व्यर्थ ही इसे मारा। व्यर्थ नहीं, वास्तव में इसके उद्धार का समय आ गया था दाऊ भैया। चलो चलते हैं अभी यमराज के पास। हाँ, चलो चलते हैं। दाऊ भैया, यह शंख कितना सुंदर है। देखें इसकी ध्वनि कैसी है। आज से यही हमारा शंख होगा। जहाँ भी यह बजेगा वह धर्म की विजय होगी। चित्रगुप्त, यह किसके पछापों की आवाज है?
जिससे यमपुरी भी कांपायमान हो रही है। हे यमराज, इस समय तो किसी के भी आने का उल्लेख मेरे खाते में नहीं है। रुको, कौन हो तुम? कौन सा यमदूत तुम्हें यहाँ लाया है? हमें कोई यमदूत नहीं लाया, हम स्वयं यहाँ आए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई प्राणी अपने जीवित शरीर के साथ यहाँ नहीं आ सकता है, केवल मरने के पश्चात ही आ सकता है। पर हम तो कभी मरते ही नहीं। तो तुम अंदर नहीं जा सकते हो। हे प्रभु, आपके इस अकंचन दास का प्रणाम स्वीकार करें। इस दास के लिए क्या आज्ञा है? हम महामुनि सांदीपनि मुनि के पुत्र पुनर्दत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। किंतु हे सर्वशक्तिमान, हमारे पास सभी प्राणी जीवात्मा के रूप में ही आते हैं। मैं उन्हें उसी रूप में वापस कर सकता हूँ, परंतु उन्हें पार्थिव शरीर प्रदान करने की शक्ति मुझ में नहीं है प्रभु। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे पार्थिव शरीर प्रदान कर दूंगा। यह लीजिए प्रभु। चलो जाओ भैया, चलो अब गुरुदेव के आश्रम चलते हैं। गुरुमाता, गुरुमाता, देखो कृष्ण आ गए हैं और उनके साथ आपका पुत्र पुनर्दत्त भी आ गया है। क्या सच में मेरा पुत्र पुनर्दत्त आ गया? माता, माता, पुत्र पुनर्दत्त, पिताजी, पुत्र पुनर्दत्त। कृष्णा, मैं नहीं जानती तुम्हारे इस उपकार को मैं कितने जन्मों में चुका पाऊंगी। तुमने मुझे पुनर्जीवन दे दिया। तुम्हें आशीर्वाद देने के सिवाय एक ब्राह्मण स्त्री और क्या दे सकती है? मुझे बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए गुरु माता, और कुछ नहीं। मैंने कोई उपकार नहीं किया है, बस एक छोटी सी गुरुदक्षिणा देकर अपने कर्तव्य का पालन किया है।